Yes, Shreya, am ma'am. I? What is the meaning of ionization therapy? Be fast. Okay, कोई बात नहीं, आज फोन पहुंच जाएगा. सिद्धांत शर्मा, what is the meaning of ionization therapy? Yes, Siddhant Sharma. Are you present? Yes or no? Yes, ma'am. What is the meaning of ionization therapy? Cameras बंद होते जा रहे हैं एक एक करके. I can see in the together mode. Yes. Siddhant Sharma, do you know? Yes or no? Just tell me yes or no. No, ma'am. No, very good. अभी इस क्लास के बाद ना, ask your parents to call me. Siddhant and Shreya. Ma'am, Yes. ma'am, ionization in therapy is defined as the amount of energy an isolated gaseous atom would take to lose an electron in its ground state. Okay. Just keep your don't unmute yourself. What is the trend of ionization therapy down a group? Yes. Ma'am, who should answer? Down the group. बेटा इतना स्लो रिस्पांस नहीं चाहिए मुझे. Okay. Next. Ma'am, it decreases. Okay. Ma'am, Gautam, it decreases as we move down. what is the reason? Ma'am, the atomic number increases and the number of shells also. Because of the increase in atomic radii. Gautam Kakkar, are you Yes. present? Gautam Yes, and Galaxy. Both of you. Galaxy and Gautam. First thing, Gautam, tell me why the ionization enthalpy of beryllium is greater than that of boron. Galaxy. Yes or no? No. Gautam Kakkar, Yes, ma'am. why the ionization enthalpy of beryllium is greater than boron? Ma'am, Anji? No. ma'am, the Ma'am. most easily removed electron in boron is that in the 2p orbital and higher in energy than 2s electrons in beryllium. Okay. Who has answered the question? Tell the name. 1 minute. And therefore it needs less energy to एक बार be नाम removed. नाम बोलो. किसने आंसर Ma'am, किया? ma'am Gautam Kumar. गौतम कुमार ने. ठीक है, मैं पूरा रिकॉर्ड रख रही हूँ बेटा इंटरनल असेसमेंट के लिए. डोंट वरी. गौतम कक्कर, तुम कुछ पढ़कर आए हो? यस और नो? यस. सेकंड गौतम इज प्रेजेंट नाउ. गौतम कक्कर, आपका Yes, नाम तो ma'am. शो Yes, हुआ था और बहुत बच्चों ने बाद में ज्वाइन किए. गौतम, आप पढ़कर आए हो? गौतम कक्कर, Ma'am, थोड़ा बहुत. थोड़ा बहुत से क्या मतलब है? कितनी देर पढ़ा था? नो. इसका मतलब होता है नो. ठीक है. ओके. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट out of lithium, potassium, calcium, sulfur and krypton. See, I am just helping you out. Lithium यहाँ पर होते हैं, फिर होते हैं सोडियम, then potassium. यहाँ पर होते हैं कैल्शियम और सल्फर होते हैं इधर somewhere, और krypton is a noble gas. Now, out of these, which is having the lowest ionization energy, which is having the highest ionization energy? It is a one marker question. Kanak, can you tell me which is having the highest ionization energy? Ma'am, please repeat the names of all the elements. Lithium, you can see the blackboard. Lithium, potassium, calcium, sulfur and krypton. Krypton is a noble gas. Lithium, sodium, potassium, these are alkali metals. Calcium is an alkaline earth metal. Sulfur is a non-metal belonging to group 16, and krypton is a noble gas. Which is having the highest ionization enthalpy? Ma'am, lithium. Ma'am, lithium. Krypton. Krypton, better noble gases. Ma'am, lithium. Ma'am, krypton. Ma'am, Krypton. krypton. Potassium. Krypton is a noble gas. Ma'am, it is krypton or potassium? Krypton. Kr. Because K symbol potassium. बेटा Kr is a krypton. K is the symbol for potassium. Last में Kr लिखा है.
Kr is the symbol for Okay. krypton. So krypton is a noble gas, so it is having the highest ionization enthalpy. And the one which is having the lowest ionization energy, किसकी होती है periodic table में lowest ionization energy? Lithium. 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 Okay. And what is the trend down the group? It decreases. 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 It decreases. तो lithium से ज्यादा छोटी तो किसकी? Potassium it should be. Potassium, because it Potassium. Potassium. is potassium. बेटा Potassium. आप लोग मेरे को अपने समझाने में तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? आप लोग नहीं स्टडी कर रहे हो. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस. और तुम ये सोचो अगर टीचर 15 से 5-10 मिनट अटेंडेंस में लगाएगी, 10 मिनट तुम्हें दोबारा से समझाने में लगाएगी, तो पढ़ाएगी कब आगे? मैंने कल वार्निंग दी थी कि आई विल कॉल द पेरेंट्स अगर आप आज नहीं बताओगे. स्टिल नो रिस्पॉन्स. और अभी तो तुम्हारा 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है, 11th में भी प्रॉपर एडमिशन नहीं हुआ है तुम्हारा. अगर सेक्शन चेंज करना है तो कर लो अभी भी. यू कैन टेक ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स. अगर नहीं पढ़ना साइंस तो पढ़ना तो कुछ भी लोगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन. आउट ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? और आप एमसीक्यू सभी आंसर कर पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है. यस लक्ष्य, व्हिच इज हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? सी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, these are the group 13 elements. Which is having the highest ionization enthalpy? This is my question. Which is having the highest ionization enthalpy? Boron. Boron. Okay. अच्छा, आप इनमें से किसकी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम और गैलियम? Gallium. Gallium. Aluminium. The ion Gallium. increases. Generally, this will be the trend, but this is not the trend. There is an exceptional case here, and the exceptional case is this one. Yes, ma'am. Gallium has d orbital present in it. That's why the energy is more. Which is having the lowest ionization enthalpy? Aluminium. Aluminium. So all these are the one marker questions. Now see this example. This is an NCERT example, but I am taking in the form of a MCQ. My question is that you are given the ionization enthalpies of sodium, magnesium, and silicon. We all know. I am giving you a hint. Please make a note in the copies because afterwards I will be asking you to submit the notes. Sodium has 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. Magnesium is 1s2, 2s2, 2p6, and 3s2. Now we can see that magnesium is quite stable. All of you can see magnesium is quite stable because s orbital is completely filled. Okay. So what is the trend of ionization enthalpy along a period? What is Ma'am, it the- increases. It increases. Yes. बेटा तुम लोग क्यों कंफ्यूज होते हो पीरियड और ग्रुप में? पीरियड में इट इंक्रीजेस. Yes, ma'am. Increase भी बोला. पहले एक बच्चे ने डिक्रीज बोला था. Yes, इट ma'am. इंक्रीज अलोंग द पीरियड. ठीक है. इनफैक्ट ये आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इंट्रोड्यूस करा रही हूँ. इसका भी सेम पॉइंट है. इट इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप. और ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है आपकी. दोनों प्रॉपर्टीज का ट्रेंड सेम है. आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो बोथ ऑफ देम increases along the period and decrease down the group. Okay. Now in the case of aluminium, the outer, मैं इसको neon से कर देती हूँ. Neon 3s1. This is neon 3s2, and this is neon 3s2 3p1. This is aluminium. Okay. Now in the case of silicon, it is neon 3s2 3p2. Okay. Now you are given, I think this portion is visible to you. Now you are given these elements. सोडियम की इतनी है. सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी. मैग्नीशियम की आपको बता दी मैंने. एल्यूमिनियम की बता दी और सिलिकॉन की बता दी. ठीक है. And what you can see, it is that it is increasing. Now my question is that the ionization enthalpy of aluminium
is it closer to 575 or 760? Yesterday or today also we did a same question based on beryllium and boron. इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम की? फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली लॉस्ट आउट ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम? Magnesium. मैग्नीशियम में से लूज होगा. आर यू मैम श्योर? एल्यूमिनियम में से होगा क्योंकि हम मैग्नीशियम बाहर रखा हूँ पूरा. बेटा मैंने यही बोला है, अभी बताया था बेरिलियम में भी 1s2 2s2 और बोरॉन में बताया था 1s2 2s2 एंड 2p1. बोरॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल जो होता है s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हैज मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट. यू चेक योर कॉपीज. बेटा एमसीक्यू के लिए ना आपको कहानियां नहीं पढ़नी है, आपको मेन आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए ना, दैट शुड बी कंसाइज एंड क्रिस्प. कि आपको जो एक्सेप्शनल केसेस है, मेन पॉइंट्स है, वो ध्यान है. अगर आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड आएगा, आपको डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे, आपके सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पर आएंगे. S orbital has more penetration effect. It means it is closer to the nucleus. तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी. I told you the same point that ionization energy of beryllium is more than boron. Yes or no? Yes, ma'am. तो इसमें भी किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की ज्यादा होगी या एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी? मैम मैग्नीशियम. मैग्नीशियम. कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और आपको एक्सेप्शंस ही ध्यान रखने होती हैं क्योंकि आपका टॉपिक 10th क्लास का है. तो दे एज्यूम कि 11th में आपको टॉपिक तो आता है, आपको एक्सेप्शंस पढ़नी है. So it means that ionization enthalpy of magnesium will be greater than aluminium. So what will be the ionization enthalpy of aluminium out of these two? What should be the answer? 575 or 760? 575. ठीक है. 575. Ionization enthalpy of magnesium is more than aluminium. So aluminium की less है. So it is not 760. It is 575. So here we are having an exceptional case. Okay. Now I hope that you will be knowing all the exceptional cases. Okay. Now we are coming to the next point. And बेटा कल दोबारा कल तो कल हॉलीडे है, जिसमें एक दिन और पीरियड क्योंकि कितना टाइम तो मेरा वेस्ट हो रहा है. अभी तक तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आगे करा चुकी हूँ. So now what we are doing is the successive ionization energy. Now if I am taking the case of magnesium or sodium, let me take the case of sodium. Sodium is 281. So first ionization energy, what is the meaning of first ionization energy? Ma'am, when the energy required to take out the first electron. Energy required to remove first electron. What we are getting is Na plus. And for this we know that I1 I have already given. Suppose it is plus 496. Plus means energy required. Plus sign always shows energy required. Now what is the concentration of sodium? Ion 218. Now if I want to remove second electron, ionization enthalpy, what will be it? Will it be greater than 496 or less than 496? Ma'am, greater than. Ma'am, Greater than. Okay. So IE2 is always greater than IE1. Why? The second ionization enthalpy is always greater than the first ionization energy. Now in this case, first reason is that in case of ion, in case of Na plus, what is the nuclear charge? कितना है? +11. ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स थे 11 और प्रोटॉन्स थे +11. तो न्यूक्लियर चार्ज है +11. Whereas और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10. ठीक है. सोडियम आयन में न्यूक्लियर चार्ज है +11, इलेक्ट्रॉन्स है 10. So, in case of sodium ion,
अट्रैक्शन ज्यादा होगी और लेस होगी? ज़्यादा होगी. ज्यादा होगी. Attraction of nucleus on outermost electron is more. Board is visible? Someone's mic is on. You are not properly audible. Okay, beta, please अपना mic off कर लो जिसका on है. If someone is facing disturbance because of that. Okay. So in case of sodium, in attraction of nucleus, ये देख लेना एक बार. Attraction of nucleus on outermost electron is more. So more amount of energy is required. So IE2 is always greater than IE1. So this is first of the reason, because of the more attraction of nucleus on outermost electron is more. So IE2 is more. Okay. Any other reason you can say in this particular case? Ma'am, screen effect decreases, so effective nuclear charge increases. और भी बोल सकते हो जो कॉन्फ़िगरेशन देखकर आपको पता चलता है. हम इसको ना कंफ्यूजिंग नहीं बना रहे स्क्रीनिंग इफेक्ट की टर्म में. हम सिंपली बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया. ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, सो अट्रैक्शन इज मोर, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. Can this be a reason? Like ma'am, the last valence shell is 3s1. Ma'am, 3s is the valence shell. तो हम उसमें से हम जब एक इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, s है वो, s ऑर्बिटल है मैम, बट p वाला है, उसके बाद तो हम p में से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी होगी. First ionization enthalpy, the anion becomes stable, and thus the ionization enthalpy second will be more. ठीक है, आप लोग सही बता रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको सीधा बोल रही थी, ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हाईली स्टेबल है ना. तुम क्यों इसको मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो? हमारा जो मेन रीजन होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया. क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया तो न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली. सेकंड रीजन, Na+ हैज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सेकंड रीजन है Na+ हैज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. In fact, in this case, IE2 is very, very much greater than IE1. बहुत ज्यादा difference है, particularly in the case of sodium. Are you getting the point? So IE2 is always greater Yes, than ma'am. IE1. IE2 is always greater than IE1. लेकिन इसमें एक reason जो आगे इस particular case में, IE2 is very, very much greater than IE1 because it has a noble gas configuration. Okay. Now another Yes. point to be noted. Suppose I am taking the case of magnesium. Magnesium is 2, 8 and 2. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है 12, प्रोटॉन्स का नंबर यानी न्यूक्लियर चार्ज है +12. Now if it is forming Mg+, what will be the number of electrons? 281. 281. 281. और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11. प्रोटॉन्स कितने रहे? 12. ठीक है. अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगी तो 28 बन गया. इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, प्रोटॉन्स हो गए 12. Okay. Now my question is, out of IE1 and IE2, which is greater? IE2. IE2 is greater than IE1. अच्छा, मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ. IE1. I am taking IE3 also. What is the meaning of IE3? 127. Energy required to remove the third electron. तो हमारा Mg3+ बन जाएगा, है ना? बनता है नहीं बनता वो अलग चीज है. तो 27 हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया 9, प्रोटॉन्स का 13. Now which is greater? IE3 is always greater than IE2, which is greater than IE1. क्यों? What is the main reason? Ma'am, because after removing 2 electrons, the magnesium have already gained the
configuration of a noble gas, but then we just remove one more electron, so it requires more energy to pull out one electron from a stable atom. Yes, very well. You have told me this reason that IE3 is very very greater than this. ठीक है, आपने ये बताया कि IE3 जो है थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी मच हाई. ठीक है ना, तो IE3 इज एक्सेप्शनली ग्रेटर. IE3 is exceptionally greater. Why it is exceptionally greater? इसमें देखो पॉइंट्स क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है. एक मैंने बताया IE3 is exceptionally greater. Why it is exceptionally greater? Because Ma'am, because the atom has already gained the noble gas configuration. After then we have again pulled one electron from it, so it requires much more energy as compared to earlier energy we have applied. short Mg2 plus has exceptionally stable. इसी का मतलब exceptionally stable है, तो it means इसमें से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है ना, I am writing in very short because Mg2 plus has one marker में अगर रीजन आता है तो बहुत लंबी कहानियां नहीं लिखनी. Because Mg2 plus has exceptionally stable noble gas configuration. Now my second question, ये तो हो गया IE3. अब मेरा क्वेश्चन है कि why IE3 is greater than IE2 and which is greater than IE1. अब exceptionally पूछ, मैं simply पूछ रही हूँ why IE2 is greater than IE1 and IE3 is greater than IE2. Anyone else? Because ma'am, the number of protons are greater than the number of electrons, so the nuclear pull increases, so it is difficult. It's very very good. Because the number of protons are more than number of electrons, so attraction of nucleus is more. If a nuclear charge is more, attraction of nucleus is more, and it becomes difficult to remove successive electrons, means further electrons. ठीक है, तो ये आपका एक जनरल रीजन है. ये आपका जनरल रीजन है जो हर केस में वैलिड है. Always the successive ionization enthalpies are greater because the number of protons are becoming more than the number of electrons. Is it okay? अब ये तो आपका जनरल रीजन है. अब ये पर्टिकुलर केस आपका नोबल गैस पे था कि यहाँ पर 28 है, यहाँ 27 है. क्यों? या कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, while IE2 of sodium is greater than magnesium. क्योंकि सोडियम जब आपका बनाएगा Na plus हो गया 2 and 8, उसके बाद बनेगा Na2+, ये हो गया मेरा IE2. ठीक है, if I am taking the case of magnesium, ये रब कर दो थोड़ा सा आगे. ठीक है, now tell me, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, why IE2 of sodium is greater than magnesium. अब बताओ, अगर मेरे को दोनों का कंपेयर करना आ रहा है, why IE2 of sodium is greater than magnesium. I am rubbing. Because sodium is noble gas state while magnesium is not. Yes. Na plus, second का मतलब हम Na plus से निकालेंगे ना. Na plus has noble gas configuration. Na plus has noble gas configuration. So it means कि इसका जो IE2 है वो ज्यादा होगा. So IE2 is exceptionally high. तो अगर मैं किसी से भी noble gas configuration से इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो ionization energy required will be exceptionally high. Okay. मैम IE3 से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? वो ये जनरल क्वेश्चन है कि why successive ionization enthalpies are greater. ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, इसकी IE1, IE2, IE3 दे दिया, और आपको पूछा कि किसकी ज्यादा होगी. तो IE3 is always greater than IE2, which is always greater than IE1. ये आपका एक जनरल ट्रेंड है. ठीक है, एक्सेप्शन कहा जाता है अगर किसी के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो वो एक्सेप्शनली वैल्यू हाई हो जाती है, डेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके ओके. तो और बेटा ये टॉपिक ऐसे कि अगर आप क्लास में भी अच्छे से सुनोगे ना फुल कंसंट्रेशन से
देयर इज नो चांसेस कि आपको समझना है, और कहीं डाउट होते यू आस्क इट। तो कल छुट्टी है तो मैं वैसे 2-3 स्टूडेंट्स को मैंने सोच ही रखा है, आज फोन करूंगी मैं अभी कि दे स्टार्ट स्टडिंग। कल तो हॉलीडे है, आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ क्लास, लेकिन नहीं ले रही हूँ। एंजॉय योर हॉलीडे बट स्टडी। जितना टॉपिक कराया कर लो तो आगे चैप्टर फटाफट हो जाएगा और एग्जाम की भी रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या electron gain enthalpy. Generally we are talking of the electron gain enthalpy, not affinity. They are almost same with a difference of sign, but we are studying the electron gain enthalpy. It is the energy released, required nahi hai. Ionization enthalpy is the energy required, but electron gain enthalpy is delta H Eg. Okay? It is the energy released. Energy released means, what is the sign of delta H? Negative. Energy released is always taken as negative. It is the energy released when an electron is added to valence shell, पूरी definition ये है, of an isolated gaseous atom. ठीक है? It is the energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom. It means, suppose we are given an atom and we are adding an electron to it, and what we are getting is X minus. Then the energy released is called as electron gain enthalpy. Okay. Now see the trend along. Okay, first let's do the Downer group. Downer group में generally exceptions कम होती है. Trend down a group. Now I am taking the group 1 elements. Ma'am. Yes. Ma'am, this energy is absorbed by the atom or it is released by the atom. जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना तो ऑलवेज द एनर्जी इज रिलीज्ड. मैम बट न्यूट्रल एटम तो ऑलरेडी स्टेबल था ना, तो उसे थोड़ी एनर्जी तो चाहिए होगी उसे अलग उसमें अपने अंदर कन्फाइन करने में. जैसे आपका देखो क्लोरीन है, क्लोरीन मींस 287. अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो क्या बन गया Cl माइनस, तो इट इज बिकमिंग मोर स्टेबल. यस मैम. वैसे भी एक जनरल ट्रेंड होता है, देखो हमेशा अगर आपको याद हो, अगर किसी भी मैं बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ, बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो एनर्जी इज अब्सॉर्ब. आप किसी भी चीज को ब्रेक कर रहे हो, सपोज आई वांट टू ब्रेक दिस बोर्ड, तो मैं अपने हाथ से उसको ऐसे मारूंगी ना तो मैं यानी एनर्जी दे रही हूँ ना. तो इफ आई वांट टू ब्रेक एनीथिंग, एनर्जी इज एब्सॉर्ब. और अगर बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड. तो जब इसीलिए हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, एब्सॉर्ब होती है. क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जा रहा है, तो यानी उस केस में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. द बॉन्डिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज ब्रेकिंग डाउन. तो इन द केस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी इज एब्सॉर्ब. बट इन द केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है अंदर तो न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड इन दैट केस द एनर्जी इज रिलीज्ड. मैम तो ऐसे क्या नेट न्यूक्लियर चार्ज में भी फर्क पड़ेगा? वो अभी मैं डिटेल्स करा रही हूँ आपको. ठीक है, तो बस सिंपली. हाँ बोलो मैम. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा का H मींस एनर्जी रिलीज्ड, Eg मींस इलेक्ट्रॉन गेन. मैं ये बता रही हूँ, मैंने ये बोला इट इज द एनर्जी रिलीज. एनर्जी रिलीज को आप ऐसे नहीं लिखते थे, डेल्टा H इज द सिंबल ऑफ एनर्जी, नेगेटिव मींस रिलीज्ड. Eg का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर मैं डेल्टा H देती हूँ, इट मींस एनर्जी रिलीज और आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव. ठीक है. Okay, ma'am. These are the short symbols. Okay. Now suppose I am taking the trend down a group. I am taking the example of group 1 elements. बेटा कैमरा 7-8 को छोड़ के सबके बंद हो गए हैं.
Okay, what is the meaning of, please switch on your cameras. What are the group 1 elements? Daman, can you tell me the group 1 elements? Daman, say yes ma'am first. Yes, ma'am. Yes. What are the group 1 element? Ma'am, hydrogen. Jaldi. Yes, ma'am. Ma'am, hydrogen and ma'am yes, ma'am, beryllium. बेटा मैं तुम्हें लगा देती किसी को 9 से पीरियोडिक टेबल सिंपल पढ़ते आए हो. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. इसका मतलब तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो बेटा. चलो एटलीस्ट तुम आंसर कर रहे हो. फर्स्ट थिंग होता है आंसर करो, चाहे सही करो या गलत करो. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. चलो फर्स्ट स्टेप के लिए अप्रिशिएट कर रही हूँ, लेकिन सुधारो. ठीक है दमन. Okay. Now what happens when moving down the determine after whether the atomic size increases or decreases? Increases. Increases. मैं बोला डिक्रीज करता है ये. समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का. अब मुझे लग रहा है मेरे को पार्टिसिपेंट की लिस्ट खोल के रखनी पड़ेगी. कौन इतने गलत आंसर बता रहे हैं. एक मिनट सोच लिया करो बेटा, फिर बताया करो. ठीक है. एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगर ये साइज छोटा है, ये बड़ा है, सपोज. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? It will decrease. It will decrease because nucleus is away Less force from of attraction. ठीक है. So on moving down the group, atomic radii increases, so effective nuclear charge. ठीक है. अब हम सिंपली इफेक्टिव, हम स्क्रीनिंग इफेक्टिव में कुछ बात नहीं करेंगे, हम सिंपल लैंग्वेज में जा रहे हैं. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस. ठीक है. तो किस केस में इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर है? साइज छोटा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर है. यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस. ठीक है. अब मैं दोनों के अंदर आई वांट टू ऐड अ इलेक्ट्रॉन. I want to add an electron. Now, in which case I can add an electron easily? Ma'am, in the smaller atomic radius. क्यों? यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, so electron can be added easily. और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड easily होगा, then and during addition what happens? Energy release or क्या? Bond बनेगा ना? Released. Energy release. Energy release brings the electron gain. Is more means more negative. Is it okay? मैं भी लिखवा रही हूँ. तो जिस केस में हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली ऐड करेंगे, इट मींस इलेक्ट्रॉन ने इजीली बॉन्ड बना लिया एटम के साथ, तो एनर्जी रिलीज विल बी मोर. So the reason for this is that down a group, as the atomic radii increases, so effective nuclear charge decreases. So it becomes difficult to add an electron in the valence shell. ये आपको बताया कि इस केस में साइज छोटा था तो इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड इजीली, बट एज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, so it becomes difficult to add an electron in the valence shell. And if it is difficult, so the electron gain enthalpy decreases. Same trend of ionization enthalpy. So electron gain enthalpy decreases down the group. Are you getting the point? With the increase in atomic radii, electron मुश्किल से ऐड होगा क्योंकि न्यूक्लियस बहुत दूर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस इजीली, so electron cannot be added easily.
So less amount of energy is released. Decreases को हम ये भी बोल सकते हैं, becomes less negative. Becomes less negative because electron gain enthalpy is negative. So it means less energy will be released. So it becomes less negative on moving down the group. Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So they can ask. So if I am trying to arrange these elements, lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium, what is the trend of ionization enthalpy? It decreases, same as that of this. Decreases means it becomes less negative. I am telling you the values for reference only. Okay, values I am giving for reference only, not to remember the values. Not to remember the values. इसकी है -60, इसकी है -53. You should be able to read NCERT tables. देखो CBSE और JEE मेंस में पहले यही डिफरेंस होता था कि JEE मेंस में you have to go through NCERT tables also. Otherwise NCERT books में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं JEE मेंस में. Okay. So this is the trend. It becomes less negative. Decrease हो रही है value. It means energy release is decreasing. यहाँ पर 46 किलोजूल रिलीज हुई, यहाँ पे 60 किलोजूल रिलीज हुई है. Minus sign simply shows that energy is released. Is it okay? Now we are doing the trend. Yes. Ma'am, if electron gain enthalpy होना चाहिए ना, एनर्जी एब्जॉर्ब के लिए माइनस होता है. एनर्जी होती है, बार-बार बोल रही हूँ, एनर्जी रिलीज इज टेकन एज नेगेटिव. मैम एक बार फिर से बता दो कि लिथियम में ज्यादा एनर्जी क्यों रिलीज हुई. दोबारा देखो, आराम से देखो, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. दिस इज माय लिंक. फर्स्ट थिंग याद रखो केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री एनर्जी रिलीज, कई बार फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा फर्क आ जाता है. एनर्जी रिलीज इज नेगेटिव. ठीक है, एनर्जी रिलीज का मतलब है डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव. एनर्जी एब्सॉर्ब इज पॉजिटिव. ठीक है, अगर मैं डेल्टा एच को कहीं पर भी पॉजिटिव लिखती हूं, इट मींस एनर्जी इज एब्सॉर्ब. और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कुछ पढ़ा था कभी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कंबशन में क्या होता है, कभी Yes, ma'am. पढ़ा था ना. कभी मैं किसी चीज को बर्न करती हूँ तो वो चीज हीट अप हो जाती है, यार उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट इज टेकन इज नेगेटिव. और कभी भी मैं किसी चीज को एनर्जी देती हूँ तो एब्सॉर्ब इज मींस एंडोथर्मिक एंड दैट इज पॉजिटिव. इज दिस पॉइंट क्लियर? नेगेटिव और पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस समझ आ गया? यस मैम. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो मैम. फॉलो. हाँ बोलो. Ma'am, so down the group, the energy absorbed is very less. That's why it's positive. मैं एनर्जी एब्सॉर्ब की बात ही क्या कर रही हूँ यहाँ पर. Energy released is very less. That's why it's positive. Yes, yes. It's not positive. It is negative. Everywhere it is negative. मैं ये बोल रही हूँ कि down the group. Lithium, the other group one element. We are moving down the group. ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. बेटा एक काम करना, जिन बच्चों को लग रहा है ना कि उन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, कंफ्यूज हो रहे हो, आप आज पढ़ लेना. कल मुझे मैसेज कर देना अगर आप कहोगे इसको रिपीट करने के लिए टॉपिक. आई कैन टेक अ डाउट क्लास टुमारो. या ले लो, बताओ. यस मैम. ओके, हाँ 10 o'clock I will be taking a doubt class. Ma'am, it is voluntary. क्या चीज? Doubt class. हाँ डाउट क्लास कल, क्योंकि वैसे हॉलीडे है. बट इफ यू वांट आई विल बी टेकिंग अ डाउट क्लास. लेकिन आज पढ़ लेना, फिर तुम्हारे डाउट्स लूंगी मैं. हाँ मुझे चैप्टर 2 से भी अच्छा बहुत. यही चैप्टर जो भी कर रहे हैं हम. मैम. बोलो. Ma'am, why ionization enthalpy decreases down the group? एक मिनट बेटा रुको, पहले मैं ये समझा रही हूँ. अभी तुम बीच में वो मत आओ.
पहले ये समझा रही हूँ, फिर उस पर दोबारा वो कल करा दूंगी आयोनाइजेशन थेरेपी, जिसके डाउट्स हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, आयोनाइजेशन थेरेपी भी उसी से क्लियर हो जाएगा वैसे। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं नीचे, लिथियम का साइज छोटा है, मैं ऐसे बस सिंपल सा दिखा रही हूँ, लिथियम का साइज केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ। ठीक है, सोडियम का साइज बड़ा है, ये लिथियम का साइज है, ये सोडियम का साइज है। ठीक है, ये आपका पोटेशियम का साइज है, इसका साइज और बड़ा हो गया। क्लियर? अब ये देखो, अच्छा पहले आयोनाइजेशन थेरेपी भी बता देती हूँ। आयोनाइजेशन थेरेपी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन थेरेपी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इनके अगर मेरे को बाहर का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज आयोनाइजेशन थेरेपी। अच्छा, इसमें आपका फर्स्ट थिंग, आयोनाइजेशन थेरेपी इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस, ये बहुत कॉमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड था पहले, लेकिन वो बाहर जा रहे हैं, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एंड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज एब्सॉर्ब। यही बताया था मैंने यही कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज को तोड़नी है तो तुम एनर्जी दोगे ना उसको। ठीक है, यस मैम। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो यानी फर्स्ट थिंग मैंने आपको ये बताया था कि जो डेल्टा एच आयोनाइजेशन थेरेपी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बॉन्ड हैज टू ब्रेक, एंड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग वी आर गिविंग इट एनर्जी, इट इज एब्सॉर्बिंग सम एनर्जी। हम एनर्जी दे रहे हैं इसको और ये एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक, अब इसमें देखो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया, गया नहीं गया? यस मैम। तो हम इजीली रिमूव कर लेंगे उसको। यस मैम। न्यूक्लियस से दूर है, यानी न्यूक्लियस से कम अट्रैक्ट हो रही है, तो हम इसको इजीली रिमूव कर लेंगे। सो व्हाट वाज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन थेरेपी? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यही बताया था। Ionization therapy decreases down the group. Point clear? Ma'am, but if it is easily removable, then why ionization energy is easily remove हो गया ना, तो यानी हमें कम एनर्जी देनी पड़ी ना। एक करना है तो मुझे इसको ज्यादा एनर्जी देनी है। एक चीज पहले हिली डुली है, मेरे को उसको ब्रेक करना है, तो आई हैव टू गिव इट लेस एनर्जी। यस मैम, अंडरस्टूड। ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है ना, हो गया ये पॉइंट क्लियर? यस मैम। यानी कि थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ब्रेक हो गया, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पोटेशियम की आयोनाइजेशन थेरेपी कम है, लिथियम की ज्यादा है, क्योंकि लिथियम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टेड था, तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। क्लियर? अब सेकंड केस, नाउ आई एम कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी। इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी, अब इसका भी ट्रेंड सेम है, आई एम सीइंग इट एज द सेम ट्रेंड। इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी का भी बिल्कुल सेम ट्रेंड है। इट इज द सेम ट्रेंड। अब इसमें ट्रेंड क्या है? हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी है, इसको हम सिंबल लिखते हैं डेल्टा एच ई जी। ठीक है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड टू ऐड an electron in valence shell. It is the energy released. ठीक है, और ये भी बताया था कि it is always negative. Why it is negative? Because the bond between nucleus and electron bond is forming. Bond form हो रहा है, और केमिस्ट्री में कभी भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, आगे पॉइंट क्लियर? इस केस में जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी कहीं से भी, तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा? न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर? तो ये पॉइंट आगे, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। आप ये देखो, अगर मेरे को ये इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मेरे को एक इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। आई वांट टू ऐड अ इलेक्ट्रॉन, सब में मेरे को एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। किस केस में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा? लिथियम। लिथियम क्यों? लिथियम इज स्मॉलर इन साइज। लिथियम के अंदर मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, लिथियम का साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। पोटेशियम में न्यूक्लियस से कितना दूर है? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इधर है, ठीक है। तो हम बोलते हैं पोटेशियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हमारा ज्यादा हो गया, दूर है। इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ ऐड करना है, न्यूक्लियस यहाँ है, तो न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन इजिली। इज इट ओके? तो किस केस में इजिली ऐड हुआ? लिथियम में। इन लिथियम electron is added easily. Why it is added easily? Because electron is more closer to the nucleus. Size छोटा है, it is more closer to the nucleus. तो nucleus इसको easily attract कर लेगा। जब मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया easily, तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी? यानी इलेक्ट्रॉन इज एडेड easily means bond is formed easily. बॉन्ड इज फॉर्म्ड इजीली, और जितना बॉन्ड इजीली फॉर्म करता है मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड मोर इजीली। हाँ जी बोलो, किसको नहीं आया आप समझ? मैम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके यस मैम। 5-10 मिनट में एक्स्ट्रा लेके टॉपिक तो बेटा खत्म कराओगे, और मेरे को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था। ओके, सो दिस इज द ट्रेंड डाउन अ ग्रुप। इज इट ओके? ट्रेंड डाउन अ ग्रुप, ये आपको बता दिया। नाउ व्हाट वी आर, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप सेम एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Now what we are going to do is trend along a period. Trend along a period. Period में हमेशा certain exceptions are there. Okay. Now if I am taking the second period only, lithium, sodium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine and neon. ठीक है, इट यहाँ पर डिक्रीज करते हैं एंड इट जनरली इंक्रीज। आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली इंक्रीजेस विद फ्यू एक्सेप्शंस। जनरली इंक्रीजेस विद फ्यू एक्सेप्शंस। ओके, टू मेक द टॉपिक क्लियर आई एम टेलिंग यू द वैल्यूज। वैल्यूज आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। इट इज -60, इट इज +66, इट इज -83, -122, it is +31, -141, -328, +116, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव साइन का तो मतलब है सिंपली एनर्जी इज रिलीज्ड। आप देख रहे हो कि जब मैं लिथियम से बेरिलियम पे गई, एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, हुई या नहीं हुई? नेगेटिव साइन का सिंपली मतलब एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ पर हुई 60 किलो जूल्स, यहाँ पर हुई 83, यहाँ से यहाँ गए अगेन एनर्जी इज रिलीज, अगेन एनर्जी इज रिलीज, यहाँ से आगे अगेन एनर्जी इज रिलीज। आप देख रहे हो तो जनरली इट इज इंक्रीजिंग। लिथियम से बोरॉन पे इंक्रीज हो गए, -60 से 83 हो गए, यहाँ पे 123, 22 इज रिलीज, यहाँ पर 141 रिलीज हुई है, यहाँ पे 328 रिलीज हुई है। बट व्हाट आर द एक्सेप्शंस? All these are the exceptional cases. Point समझ आया कि मैंने ये बताया कि it is generally increasing with a few exceptions. Is it clear from the values? Yes or no? मैम हम गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इनको मैंने बोला है कि एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पर सब में नेगेटिव साइन है, आपको ये समझ आ गया। मैं कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दूं, लिथियम, बेरिलियम,
नाइट्रोजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के अंदर 328 किलो जूल्स इज रिलीज्ड, ये रिलीज हुई। नेगेटिव साइन का मतलब है सिंपली इट इज रिलीज। लिथियम के अंदर हुई है 60 किलो जूल्स इज रिलीज। तुम्हारा बेटा 10th में था, ये टॉपिक कट गया था क्या? मैम ने टॉपिक नहीं था। टॉपिक नहीं था, अच्छा तभी ये प्रॉब्लम आ रही है। नो मैम। नहीं तो ये तो थोड़ा सा ना बुक में तो था, मतलब एनसीईआरटी बुक में था। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस और न्यूक्लियर चार्ज ये सब तो था। मेटलिक कैरेक्टर तक था मैम। तो डिलीट हो गया, तभी आई वाज शॉक्ड कि तुम्हें क्यों नहीं प्रॉब्लम आ रही है। नाउ आई गॉट द रीजन, नो प्रॉब्लम। ओके, लिथियम में इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, फ्लोरीन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो मैंने यही बोला ना कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप आप भूल जाओ, अलोंग द पीरियड हम यहाँ से करें, इट जनरली इंक्रीजेस। यही देखें, नेगेटिव साइन का सिंपली सिग्निफिकेंस है कि एनर्जी इज रिलीज। यहाँ पर इतनी रिलीज हुई है, यहाँ पर इतनी रिलीज हुई। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो? Yes. अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस कैन बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक दो बच्चे होंगे अभी ऐसा मुझे मालूम है जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने नहीं पढ़ी होती। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम? 1s2 2s2 1s2 2s2। क्या चीज देख रहे हो इसमें? एस ऑर्बिटल क्या है? Completely filled. अगर कोई भी चीज कंप्लीटली फिल्ड है तो वो क्या होगी? हाईली स्टेबल। Completely filled means highly stable. And if something is highly stable, will it gain or lose electrons? No. हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी यही एक्सेप्शन पढ़ी थी बेरिलियम और बोरॉन की, कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। Why? Because beryllium has a completely filled s orbital. It has a completely filled s orbital, so it is highly stable and can so electron gain enthalpy is positive. Positive का क्या मतलब है कि वो अपने आप तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा भाई। अगर मेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन देना है तो मैं उसको जबरदस्ती दूंगी, ठीक है ना? पॉजिटिव का मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बेरिलियम इज बहुत स्टेबल है, वो अपने आप इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, उसको क्या जरूरत है, उसको तो एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन देना है तो आई एम गिविंग इट फोर्सफुली, मैं उसको जबरदस्ती धक्के दे दे के इलेक्ट्रॉन ऐड करा रही हूँ। तो इट मींस आई हैव टू गिव इट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनी डाउट? समवन हैज रेज्ड द हैंड। Ma'am, हाँ बोलो। Mummy, ma'am, if we compare the stability of beryllium with any exceptional stability like we say of magnesium 2+, then बेरिलियम का क्लियर हो गया? एक एक करके हम कर रहे हैं। बेरिलियम का क्लियर है? yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming to the case of nitrogen. Now in the case of nitrogen, the configuration is 1s2, 2s2 and 2p3. All of you know. What about the p orbitals? Half filled, fully filled, or Half filled. also stable? Also stable? Why it is stable? Because of exactly half filled p orbitals. Exactly half filled p orbitals. Is the point clear? तो इस केस में भी क्या होगा? स्टेबल है। If these elements require energy to gain electrons, then how do they form ionic compounds? एक एक करके करेंगे ना पॉइंट्स, एकदम हम अभी नहीं कर सकते ना। अभी तो बस मैं ये बता रही हूँ कि वैल्यूज हमारे क्यों ये स्टेबल है एंड व्हाई इट इज पॉजिटिव। जब हम धीरे धीरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आगे करेंगे, देन वी विल बी ऑल दीज पॉइंट्स विल बी क्लियर। Okay, ma'am. नाउ सी द केस ऑफ नियॉन। अब आप नियॉन का तो देख रहे हो, नाइट्रोजन का तो 31 ही था, लेकिन नियॉन में तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए नियॉन में? नियॉन में कितनी चाहिए? 116. What is the configuration of neon? Noble gas. It is exceptionally stable. ये तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा स्टेबल है।
Because it is a noble gas. So will it gain electron? No. ये तो नोबल गैस है, तो अगर मुझे देना भी पड़ेगा तो मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी, नाइट्रोजन तो फिर भी कर सकता है, नाइट्रोजन को तो केवल 31 चाहिए, लेकिन नियॉन को कितनी चाहिए? +116. So neon will not gain an electron at all because it requires lots and lots of energy. Is it okay? तो ये आपको क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल रहा है कि नाइट्रोजन को हम क्यों इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयन बना सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, इसको केवल 31 चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन गेन करते हैं ना, जनरली गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारा नाइट्रोजन के अंदर बनते हैं N3- आयन, और ये एक्सेप्शनली स्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इज इट ओके? तो नाइट्रोजन गेन तो कर लेगा, बट वी हैव टू गिव इट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। और नियॉन तो फिर भी गेन नहीं कर पाएगा बिकॉज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी हाई। इट नीड्स 116 किलो जूल्स, नाइट्रोजन से तो उसको 4 टाइम चाहिए रफली। इज द पॉइंट क्लियर? So this is what I am telling you friends along a period. बोलो। अब एक और इसमें पॉइंट करा रही हूँ, 5 मिनट्स और ले रही हूँ। Now another exceptional cases are in the case of there are 2 exceptional cases further. ये तो आपका पीरियड में आपने देखा, तो more exceptional cases now we have. Now another exceptional cases अगर हम periodic table की ही बात करते हैं, आपको जैसे आगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अच्छा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के नीचे होता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सिलेनियम एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, व्हाट इज द ट्रेंड डाउन अ ग्रुप? व्हाट इज द ट्रेंड डाउन अ ग्रुप? Decreases. डिक्रीजेस का मतलब क्या होना चाहिए? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, ये होना चाहिए ना डिक्रीज। बट हियर देयर इज अ एक्सेप्शनल केस। Ionization enthalpy of fluorine and this one. Okay, now in fact the order is like this. यहाँ पे exception है, or we can write the order is like this: fluorine, then it is fluorine, then bromine, and then iodine. So this is my first exceptional case. Second exceptional case is in the case of oxygen. It is like this. अगर आप इसको या तो इस तरह से याद करो, ऑक्सीजन और सल्फर में से सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। वैसे तो डिक्रीज हो रहा है, बट ऑक्सीजन और सल्फर में आपका एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, और एक्चुअली अगर हम वैल्यूज देखेंगे तो सल्फर, then it is selenium, then it is tellurium, and then it is oxygen. So you can see that in the case of oxygen it is very less. यहाँ पे देखो ऑर्डर ये है, अगर आपको अरेंज करने को आ जाता है तो यू हैव टू रिमेम्बर द ऑर्डर। हमें एक तो ये एक्सेप्शन याद रहती है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शनल केस है, लेकिन एक्चुअली में इसकी वैल्यू कहाँ आती है, दैट वी हैव टू रिमेम्बर। ओके, नाउ why the electron gain enthalpy of oxygen is less? या फ्लोरीन का ले लेते हैं, why electron gain enthalpy of fluorine is less than chlorine? What does it mean? What does it mean? Actually क्वेश्चन का क्या मतलब है? Why fluorine cannot easily attract the electron than chlorine? हम ये बोलते हैं ना, electron gain enthalpy is the energy released when an electron is added to the outermost shell. तो हम कह रहे हैं कि फ्लोरीन की कम है, यानी फ्लोरीन के outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन easily ऐड नहीं हो सकता। This is the meaning. Okay. Yes. अब रीजन देखो, रीजन है कि अब आप फ्लोरीन का साइज देखो, व्हाट इज द ट्रेंड? यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई
From lithium to fluorine? Decreases. Increases. सारी प्रॉपर्टीज आपकी एक दूसरे के ऊपर बेस्ड होते हैं. एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज, ठीक है ना. डाउन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस, अलोंग अ पीरियड इट डिक्रीजेस. इट मींस कि जब हम ऑक्सीजन या फ्लोरीन पर आएंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियाई कंपैरेटिवली बाकी एलिमेंट से छोटा है, ठीक है. अब इस छोटे से एटॉमिक रेडियाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है फ्लोरीन के अंदर? 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. नहीं है, साइज छोटा है. बाकी अगर मैं ऐसे जा रही हूँ, लिथियम से भी फ्लोरीन का साइज छोटा है, लेकिन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड व्हाट वी नो इज दैट ड्यू टू स्मॉलर साइज, मैं प्रॉपर रीजन बता रही हूँ, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन देयर इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ठीक है, इतने से छोटे से साइज में मैंने 7 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ऊपर से मैं एक और ऐड करना चाह रही हूँ. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड. तो क्या ये इजीली लेगा? पहले इसका साइज छोटा है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट विल रिपेल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. वो इजीली नहीं लेगा. दैट्स द रीजन उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा है. तो देयर इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इजीली ऐड नहीं कर सकते. लेकिन क्लोरीन की जब हम बात करते हैं, क्लोरीन में एकदम साइज बढ़ जाते हैं 2, 8 एंड 7. तो क्लोरीन इजीली अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर पाएगा. सेम इज द केस विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में भी यही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 and 6. छोटा साइज है, नंबर ऑफ शेल्स भी कम है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ठीक है. तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन और ऑक्सीजन, दोनों में सेम रीजन है. बोलो. हम फ्लोरीन का एक बार और ओके. ये देखो, अगर हम फ्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर कर रहे हैं, मैं दोनों का रेडियाई के हिसाब से दिखा देती हूँ. फ्लोरीन का मतलब है 2 and 7, फ्लोरीन है 2, 8 and 7. ठीक है. फ्लोरीन का हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज जो भी है, चलो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट में 7 है, और इसका साइज बहुत छोटा होता है फ्लोरीन का. वो रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब हम पीरियड में ऐसे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज है. फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ये हो गया मेरा फ्लोरीन, ये है मेरा फ्लोरीन. अब फ्लोरीन लेना तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स. क्यों लेना चाहेगा? बिकॉज आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 1 more shell is there. This is my chlorine. ठीक है. Now what we know is that chlorine का साइज तो बड़ा है, काफी बड़ा है. अब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहेगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास 2 7 है, and when it is gaining the electron it converts into fluoride ion. ठीक है. Same is the case with chlorine. When chlorine is gaining an electron, it will convert into Cl minus, that is having the noble gas configuration. So both of them will try to gain an electron. ठीक है. लेकिन हम कह रहे हैं कि क्लोरीन इजीली ले लेगा. क्यों ले लेगा क्लोरीन इजीली? क्योंकि उसमें उसका साइज क्या है, हमारे बड़ा है. तो उसमें मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूंगी, आई कैन इजीली ऐड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं है. ठीक है. लेकिन फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है. अब मैं इलेक्ट्रॉन चाहूंगी, वो लेना तो चाहेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज इतने छोटे से रीजन में है, तो पहले ही एक दूसरे को रिपेल करे, तो एक और ऐड करना चाहोगे तो उसको रिपेल करेंगे, इजिली नहीं लेंगे. और अगर इजिली नहीं लेते तो इट मींस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. हमने यही कहा ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड. क्लोरीन ने इजिली ले लिया तो मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, फ्लोरीन नहीं ले रहा तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड. So that's why I am saying that electron gain enthalpy of fluorine is less than chlorine. ठीक है? Yes, ma'am. Point clear?
So with this we have done the electron gain enthalpy. Successive रह गई है, वो अब बाद में ले लूंगी. तो कल कितने बजे लूँ डाउट क्लास? How many of you are interested? ऐसा ना हो कि मैं ही आऊँ बस. 10 o'clock. Ma'am, 12. I'm 10. 10:30. Very good. कोई 10:30, कोई 10 o'clock, कोई 12 o'clock. 10 o'clock. चलो सो के उठ जाना, 10:30 ले लूंगी. आराम से सो के उठना. चलो ठीक है. 10:30 आई विल टेक. और कितने बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उसके लिए फिर प्रॉब्लम मेरे को एक बार फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. मैम. हाँ जी. Ma'am, today 22 children did not turn on the camera. Okay. Ma'am, ma'am, can I share the name? Yes, you can share the name. Ma'am, I'm gonna tell the name now. You want to tell the names now? Okay, just wait. Let me note it down then. बेटा मेरे को ना पर्सनल पे भेज दिया करो, वो ज्यादा अच्छा है. नहीं तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे कि तुम नाम बता देते हो मैम को. तुम एक काम किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब वो कैमरे पे आइकन आता है ना, और वो मेरे को भेज दिया करो. ठीक है मैम. वो ज्यादा अच्छा है. अगर तुम ऐसे सबके सामने नाम लोगे ना तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे. टीचर को तो कुछ नहीं कहेंगे वो. सही कह रहे हो. मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा मैम आपको. ठीक है ना मैम. भेज दिया करो कभी भी. यस. I had slight weak connection, that's why I was not switching it on. I had to leave the class in between. Okay. चलो ठीक है, आपको एक्सक्यूज मैं मान लेती हूँ. अच्छा 1 minute. 2 students I want to talk to their parents. Just wait. Can you call your parents now only? Are they at home? मेरे को नहीं तो कॉल करना पड़ेगा. गैलेक्सी, गौतम कक्कर, दमन, श्रेया एंड सिद्धांत शर्मा. सिद्धांत बाकी लीव कर जाओ एक्सेप्ट दमन, गैलेक्सी, गौतम कक्कर, श्रेया एंड